हैं? Welcome to the Business Pro show. This show is about money, about entrepreneurship, about organization management, and to share values with our audience. Okay, how we can help them to replicate the experiences which our hosts have, honorable guests have done in their ventures. So this is the main theme of the show. So could you please brief us about Cheetah Logistic? How was the venture and how it started and what's coming? Okay, so Cheetah was a brainchild of our founders, Ahmed and Majid. We started our operations back in 2015, uh, and the concept was of Wapistan. They were both like Majid was working in US and he wanted to give back to the community, और वो चाह रहे थे कि यहाँ पे there should be some ventures. और टेक्नोलॉजी आ रही है, 4G आ रहा है, तो there should be some local venture as well. So that was 2015 when we started with food delivery. We kept on experimenting over the last couple of years. Then last year Majid came as a full-time CEO for the company, and we changed our business in journal, and we shifted ourselves to now commerce, और दुनिया इसको quick commerce भी कह रही है, model. So now we're pioneer in now commerce in Pakistan. So just But coming back to what you just said, you just start off with food delivery business first, right? So was there something specific about food deliveries that was initiated by Cheetah? food delivery. So the USP we came with. There were other couple of food delivery companies at the moment as well, but Cheetah आया और Cheetah ने कहा कि you want to order your favorite meal, जैसे जाहिद की निहारी है या भज्जे के पाए हैं, वो डाउनटाउन में मिलते हैं, आपको डिफेंस में नहीं मिलेंगे, तो यू कैन हैव दैट डिलीवर्ड एज वेल. सो हम लोगों ने उस यूएसपी के साथ फूड डिलीवरी स्टार्ट की, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग इट सिंस नाउ. अभी भी अगर आपको भज्जे के पाए चाहिए, या आपको जाहिद की निहारी चाहिए, या आपको सेवर का पुलाव चाहिए, so you can have it delivered to 20 kilometers or 30 kilometers far away I as would well. love to have them if you have the mechanism to deliver them in Karachi and across Pakistan. That would भज्जे be के great. पाए, हाँ भज्जे के पाए तो नहीं होंगे, लेकिन जाहिद की निहारी आपको बिल्कुल मिल जाएगी. Yeah. So उसमें जो main चीज है, so like if you look at this logistics space, so उसमें you see Kareem is there in deliveries of food. Uske baad Baikia is doing again. First they start off with ride hailing, and then they come to delivery of the foods and other items. If you look at the landscape in Pakistan, there are about 25, 30 apps. You see them in Play Store. Because of COVID, वो भी stop हो गए हैं काफी operations. But in that competitive space, how you think Cheetah is focusing on delivering value and yet being profitable? Ajay, we are not profitable at the moment, but our unit economics are much better as we compare to the companies all around the world, including Pakistan. Uh, we are on the path to profitability. Yes, it will take another good 1 or 2 years. But as far as the vision is concerned, so जब हम लोग ने लॉन्च भी किया था, तो we came up with our own logistics. उस टाइम किसी भी कंपनी के पास अपनी लॉजिस्टिक्स नहीं होती थी, और टेक की बेसिस के ऊपर सबसे पहले चीते वाज अ कंपनी जिसने राइडर को एप्लीकेशन दी टू ट्रैक, और कस्टमर को ये लिबर्टी दी कि यू कैन ट्रैक योर ऑर्डर, कि वो इस टाइम आपका राइडर कहाँ पे है. Then on the back end side, we were the first one जिसने वेंडर जो रेस्टोरेंट साइड है उसको टेक इनेबल किया. उसको ये कहा कि यार आपके पास ऑर्डर भी यहाँ पे लैंड करेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो यू कैन रिक्वेस्ट अ राइडर. सो एरेंट का मॉडल was first introduced by Cheetah in 2017 I believe. और जहाँ पे रेस्टोरेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे पास इस टाइम आज राइडर्स नहीं है, यू कैन हैव आवर फूड डिलीवर्ड टू आवर कस्टमर, जो डायरेक्टली उनके पास लैंड किया है. सो व्हाई फूड? सो जो आपका मेन क्वेश्चन है कि व्हाई फूड, आई थिंक बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी करनी है, लेकिन फूड डिलीवरी इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर.
इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना, मेकिंग श्योर कि कस्टमर को खाना जो है वो 30 से 35 मिनट की ड्यूरेशन में मिल जाए, क्योंकि वो भूखा होता है कस्टमर, उसको जल्दी खाना चाहिए होता है। तो इसलिए देयर 3-4 मेन स्ट्रीम कंपनीज जो रह गई हैं, बाकी जो 40-50 ऐप्स लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, देन वो चले जाते हैं। Keeping in view this, I was thinking that food delivery, as you rightly said, is a very very challenging business. Time constraint है, फिर आपको make sure करना है कि the food is delivered hot. So, but if you look at the other aspect of Pakistani logistics segment, जिसमें आप कह लेंगे स्मॉल ट्रक लोड्स हैं, जिसमें आप अबाउट 600-500 kg के स्मॉल ट्रक्स मूवमेंट करते हैं. सो उस स्पेस में अगर आप अभी भी देखें, there is a huge vacuum. Right now, if you want to get a small vehicle to pick up some stuff from location A and drop it to location B, even within the same city, still it's a manual thing. करीम ने भी इसमें जंप इन करने की कोशिश की है, प्लस Uber ने अभी नहीं आया इसमें, but actually if you look at, still it's not very easy. Let's suppose if you have a washing machine which is broken up and you want to get it transferred from your home and drop it to a service center, so मैनुअली होगा, लेकिन if you electronically if you look at वो नहीं पॉसिबल. इसी तरह स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनकी डिलीवरीज हैं फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, इट्स नॉट पॉसिबल. सो हाउ यू सी के ग्रोथ मार्केट के पर्सपेक्टिव से कंपेयर टू फूड डिलीवरीज, बट द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग एंड द नॉर्मल जो लॉजिस्टिक कोर लॉजिस्टिक्स है, तो उसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है. So did you ever, like, I just want to hear about being from this industry, so you will have a better visibility. देखिए, so we are a marketplace, और हमने अभी जो सबसे पहला हमारा टारगेट है इस बाइक राइडिंग. सो अगर आपको लोकेशन ए से लोकेशन बी तक कोई चीज़ पहुंचानी है एंड इट्स ऑन बाइक, चीते वो डिलीवर करता है. वेदर बी स्मॉल बिजनेसेस, आपने इमीडिएट बेसिस पे, अगर आपने ड्रॉप शिप मॉडल पे काम करना है, आपको कस्टमर की कॉल आई है कि मेरा एक सूट जो है वो टाउनशिप में डिलीवर कर दें, सो यू कैन रिक्वेस्ट अ राइड फ्रॉम चीते एज एन एरेंड. हाउएवर जहाँ पे बात है क्या कहते हैं, जो बिजनेसेस लाइक खाड़ी, सफायर वगैरह, तो उसके लिए हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, विच इज़ the business was initially started at Cheetah, और उसके बाद फिर हमने वो business separate कर दिया. Now B2B logistics is done by Swift, and B2C logistics is done by Cheetah itself. अब आपका जो सवाल है, जहाँ तक आपकी मिनी मज़दास, मिनी ट्रक्स, I think there is still a market for that. अभी बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, कोई भी कंपनी नहीं करी. I think करीम ने स्टार्ट किया था, but I don't know वो कहाँ पे इस टाइम उनका बिजनेस है. सो फर्स्ट आई थिंक जो राइडर वाली साइड है, वी आर गोइंग टू कवर दैट, एंड देन इंशाल्लाह वी विल, इट वुड बी इजियर फॉर अस टू कम इन उबर फॉर ट्रक, जैसे अमेरिका में है, या बाकी जो सक्सेसफुल मॉडल्स इंडिया में चल रहे हैं, चाइना में चल रहे हैं. वी कैन एक्सप्लोर दैट, बट अभी our main focus is now commerce, which is 30 minutes delivery on the bike. Oh wow, that's super amazing. So how can you tell us more about Now Commerce? Ji, so Now Commerce, so basically back in January we started working on grocery and medicine. These were two additional verticals जो हमने already launch कर दिए हुए हैं. So now अगर आपने grocery करवानी है, say you wanted to shop from Al Fateh, or you want to shop from Jalal Sons or Chase Up etc., तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, मेरा राइडर उसी टाइम उस दुकान से जाके वो चीज़ें परचेज करता है, he'll have it delivered to you within 30 minutes. So अभी हम average around 30. How about cash transactions? So does your आपके राइडर्स के पास, do they carry sufficient cash to buy the groceries? Because normally if अगर आप काफ़ी grocery order कर रहे हैं, तो the ticket size would be like 15-20K or maybe around 10K-ish. So we have arrangements with our partners. So हम लोग जो राइडर्स से कैश की डीलिंग नहीं करवाते, ठीक है, टू इंश्योर 25,000 का ऑर्डर है या 30,000 का ऑर्डर है, तो राइडर लेके चला जाए, उसको उस टाइम
कैश की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपने एरेंड ऑर्डर करवा दिया, सो वी हैव द टेक्नोलॉजी कि हम इमीडिएट बेसिस पे हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है राइडर को। ही हैज़ नाउ 25,000 रुपीज़ जाके वो आपने कोई एरेंड पे लेट्स सपोज आपने कोई बच्चे का झूला मंगवा लिया जो बाइक पे आ जाएगा, ठीक है, और वो 25,000 रुपये का है, तो यहाँ पे और वो दैट पर्टिकुलर वेंडर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पार्टनर विद अस, तो हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर कर देता है पेमेंट टू द राइडर, और राइडर जाके बाय करके आपसे आके पैसे ले लेगा। या यू कैन डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, डेबिट कार्ड से पे कर दें। अभी आई हैव रिसेंटली फाउंड आउट कि जैसे प्रो पे कंपनी आई है, हबॉल है, इट्स B2B पेमेंट ट्रांसफर्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं। फ्रॉम एनी बैंक यू कैन जस्ट जनरेट एन इनवॉइस। अब किसी भी बैंक में जाके यू सिलेक्ट द ऑप्शन हबॉल है या पेप्रो है, एंड देन यू क्लिक पंच इन द इनवॉइस नंबर एंड यू गेट द अमाउंट्स। जिस तरह हम बिजली का बिल पे करते हैं, गैस का, सिमिलर फैशन में यू हैव द इंटीग्रेशंस। So are you thinking of integrating those to your ecosystem? I think हमें I haven't heard about these two companies, but मुझे भी हमें last week ही पता चला, because once I got the fee vouchers from my kids' school. So this time they say you pay via PayPro, and the first time I paid, because otherwise it was a hassle. You have to send someone to the bank, specific branch of the bank, and then you get this fee cleared. And now with this kind of emerging technology जो कि हमारे payment space में काफ़ी ज़्यादा players आ रहे हैं, so it's becoming hassle free. So मोहसिन ये बताइए कि for vendors, जिस तरह अभी I give you an example. One of my friend, his daughter started food business on a very small scale, and they have to arrange riders for deliveries. Because again, it's a sensitive time or time sensitive delivery here. So if you ordered lasagna, so once it's baked, so you have to deliver it within 15-20 minutes span. Otherwise, वो फिर चीजें it would not be as good as it is fresh नहीं रहेगा। तो उसके अंदर जो है, how can such small players जो food delivery business में है, they can come on board to your app? What's the process for that? दो चीज़ें हैं इसमें जवाब। एक तो ये है कि ये जो क्या कहते हैं स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये होम बेस्ड ईटरीज हैं, वी वेलकम देम ऑन बोर्ड। एक तो वो लिस्ट करवा सकते हैं अपने आप को ऑन द प्लेटफॉर्म। नंबर 2 ये है कि अगर उनके पास डायरेक्टली ऑर्डर आए एंड दे वांट टू रिक्वेस्ट अ राइडर, व्हाट दे हैव टू डू इज दे जस्ट हैव टू गो इनटू आवर जो रेस्टोरेंट ऐप है, उस पर उन्होंने जाके अपनी रिक्वेस्ट करनी है, और राइडर विल रीच देम इन अबाउट 10 to 12 मिनट्स, और राइडर का एस्टिमेटेड अराइवल टाइम भी आ रहा था। सो आई एक्सप्लेन यू ये कैसे काम कर रहा है। सो हमारे पास कराची में फॉर एग्जांपल देयर 5 हॉटस्पॉट्स। हमारे हॉटस्पॉट्स में वी हैव द राइडर्स ऑलरेडी प्लेस्ड। Oh, you have a small set of riders waiting for the rides at certain hotspots. जी, क्या कहते हैं इस टाइम, just take an example of Karachi. We have 1,000 riders, 1,000 की fleet is on the roads waiting for the rider, waiting for their next order. तो जो भी क्या कहते हैं optimal level का rider होगा, the tech will decide that particular rider, जिसका for example जो आप क्या कहते हैं आप small business की बात कर रहे हैं, उसने कहा है कि मेरा लजानिया 10 मिनट में बन जाएगा और हमें 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से पिक करके कस्टमर को डिलीवर करना है। सो द टेक विल आइडेंटिफाई द राइडर जो 10 मिनट की दूरी पे है, वो पहुँचेगा, क्या कहते हैं खाना पिक करेगा, एंड ही विल हैव इट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। Oh, that's amazing. So this solves a lot of problems, because the good thing I like about your venture is it's enabling small businesses to expand. Normally आज से अगर आप 5 साल पहले या even 3 years ago या 5 साल पहले आप देख लें, so in order to deliver something from a home, like it was very difficult unless until you have a trusted person, it was not possible. So in case कि अगर आप deliveries कर रहे हैं from food items हैं या कोई small grocery items हैं या even gadgets वगैरह लोग buy and sell and purchase करते हैं and that needs to be delivered.
So in transit insurance जो है, so is that covered, is it not covered, what if, ये देखिए हालात कराची में जैसे इट्स वेरी सेंसिटिव, तो अगर आप लैपटॉप किसी बाइक वाले को देंगे, so most likely what happens is कि अगर उसको सेफली पहुंच गया तो पहुंच गया, otherwise you know like there are chances कि कभी भी कुछ भी हो सकता है रास्ते में. So how this insurance part is covered, or how you are taking care of it as a अच्छा जी, business? तो हमारा राइडर होता है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, सिर्फ उसकी नहीं उसकी फैमिली की भी. और सेकेंडली जो इन ट्रांजिट है, अगर वो खाना लेके जा रहा है और अगर खाना 10,000 या 12,000 रुपये का खुदा ना खास्ता वो स्नैच हो जाता है, तो देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन द राइडर्स कि यार अगर आपके पास कोई भी मिसहैप होता है, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू द कॉन्टैक्ट सेंटर, दे विल हेल्प यू. आपने किसी के साथ लड़ना नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अगर लेट्स सपोज उसका मोबाइल भी स्नैच हो जाता है या इस तरह का कोई हादसा हो जाता है जो प्रीवियसली हुए भी हैं, तो द कंपनी इज़ ऑन द बैक और कंपनी जो है वो फुली कवर करती है. जहाँ तक बहुत ज़्यादा कीमती अशिया की बात है, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन पर्टिकुलर एरियाज़ के ऑर्डर्स ना लें जहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है, या रात को लेट नाइट ऑर्डर्स नहीं लें. बाकी दिन में वी डिलीवर थ्रू एरेंट, और वो इजीली जो है राइडर डिलीवर कर रहा है. कोई बहुत बड़ा हादसा अभी तक पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, बट एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न, राइडर इज इंश्योर्ड. जैसा एयरलाइंस के अंदर एक मॉडल काफी कॉमन है, स्पेशली जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, बिकॉज आई एम इनटू एविएशन इंडस्ट्री फॉर लास्ट 6 years, तो मुझे इसमें ज्यादा विजिबिलिटी है. सो व्हाट दे हैव कम अप इज ऑन द फ्लाई इंश्योरेंस. So customers book seats and they have an option के वो insurance अपने पैकेज की या अपने ट्रैवल की स्पेसिफिक फ्लाइट पे अगर लेना चाहते हैं तो they have an option. Unlike जो large carriers हैं like Emirates or PIA, their passengers are already insured as a part of the offering. So are you planning to give some insurance kind of something in the ecosystem? अभी क्योंकि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है ग्रोसरी का, दैट्स अराउंड 3,000 3,500. मेडिसिन का इज अराउंड 6,000. फूड का इज अराउंड 800. तो वो एडिशनल अमाउंट अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कस्टमर को कहें कि इंश्योर करवा लो. हाउएवर इन द फ्यूचर, और प्राइमरली हम लोग COD मार्केट हैं, अभी ऑनलाइन पेमेंट है नहीं. आप लो कॉस्ट कैरियर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में हो जाती है. अभी भी देयर आर अबाउट 8% इन आउट ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस जो फेक होती हैं, जहाँ पे कस्टमर सिर्फ मजाक कर रहा होता है. Oh my God. वो एक पोटेंशियल रिस्क भी है. अगर हम लोग उसके ऊपर एक फर्दर इंश्योरेंस ऐड कर देंगे और वो So आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया कि अगर अभी भी लोग पीपल आर लाइक स्कैमिंग कंपनीज लाइक योर्स ऑन द फ्लाई. सो व्हाट्स द प्रोसेस? आप लोग क्या करते हैं? उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, और आर यू क्रिएटिंग अ डेटाबेस, और देयर इज ऑन अ नेशनल लेवल यू थिंक के इसके ऊपर कुछ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए? बिकॉज ये प्रॉब्लम स्मॉल रेस्टोरेंट्स में भी आती है और डिलीवरीज में भी आ रही है, एंड इट्स हर कोई अपने आप पे इंडिविजुअली एड्रेस कर रहा है. लाइक मे बी यू ब्लैकलिस्ट दोस मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस और एरियाज. हम लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो जितनी ट्रांजैक्शन अमाउंट है उस पर्टिकुलर कस्टमर की उसके वॉलेट में नेगेटिव में चली जाती है. सो अगेन इफ ही वांट्स टू ऑर्डर अगेन, तो उसको वो पहले अमाउंट फुलफिल करनी होगी, उसके बाद फिर हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. एज फार एज आवर पार्टनर्स आर कंसर्न, तो वो वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्टनर साइड. और अगर कोई खाना ज़ाया हो गया है तो वी बेयर 100% ऑफ दैट अमाउंट, और वो पार्टनर पे लायबिलिटी नहीं होती. As an industry player, so you think there is a requirement of establishing a blacklisting database kind of a thing? या आई थिंक ये अगर क्या कहते हैं, एक तो ये है कि 5 सिम्स हैं एक बंदे के पास, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है. और एज एन इंडस्ट्री अगर ऐसा कुछ 4-5 कंपनीज मिलके इनिशिएटिव लेना चाहती हैं, आई थिंक वी वुड बी मोर देन वेलकम टू हेल्प देम इन दिस केस. और वी वुड अप्रिशिएट, ताकि उसमें 2 पोटेंशियल रिस्क हैं. एक तो सिर्फ खाना है या चीज़ें हैं वो जो मिस हो गई. अदर देन दैट उन ब्लैकलिस्टेड कस्टमर्स की वजह से लाइफ ऑफ पीपल इज एट स्टेक एज वेल. सो अगर किसी ने
फॉर एग्जांपल किसी ने खाना मंगवाया और वो आगे से स्नैच हो गया या उसी ने स्नैच करवा दिया, तो राइडर की जो लाइफ है इज एट स्टेक एज वेल। तो अगर कोई इनिशिएटिव लेता है कंसोलिडेटेड डेटाबेस की और कुछ 4-5 कंपनीज मिलके कहती हैं ओके ब्लैकलिस्टेड कस्टमर्स हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, वी आर टेलर मेड फॉर पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तानी कंपनी, वी आर टेलर मेड फॉर पाकिस्तान, वी आर हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव। मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कई लोगों से मेरी इस टॉपिक पे बात हुई है, and this problem is like being dealt with people on individual basis, companies on individual basis, pockets के अंदर है। So I was thinking कि like now we are talking, so I wanted to have your views कि इसमें आपका क्या है। So I'll open up this discussion with some of our other friends, and let's see what we can do about it. Coming back to one thing which is very big challenge in Pakistan is human resources. I'm from little bit old school, ठीक है, so mostly corporate environment and corporatized cultures. So वहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्योंकि जो the mechanism is very controlled, intake is controlled, and the training mechanisms are such that के once you take a good resource and you train him properly, so you know like over a period of years he becomes absorbed into the corporate practices. अभी जितने नए वेंचर्स आ रहे हैं, वी हैव जनरेशन Z in workforce, demographic wise और culture wise there is a lot of shift compared to the corporate culture, और इस जो यंग फोर्स है और जिस तरह का हमारा कल्चर है, उसमें आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद देम? देखिए, एक तो it's a very tricky question. You don't have to be like particular example, but in general I'm asking. Okay, so हम लोग so we're aggressively hiring. हम लोगों ने during COVID एक बंदा lay off नहीं किया. अभी भी हम लोग we're aggressively hiring. We're looking for the top talent, और to retain that top talent, we are the only company in Pakistan where each of our employee have the equity in the company. So this is something we tell to the potential. So you mentioned equity, which means did you offer them stock options, or can you explain a little bit of that? We offer stock options to all our employees, चाहे वो janitorial staff क्यों नहीं है, ठीक है, चाहे वो कॉन्टैक्ट सेंटर स्टाफ क्यों नहीं है, सबको एक तो स्टॉक ऑप्शंस हम लोग देते हैं। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग हायरिंग दिस इज अ जनरल प्रोसेस कि हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज को कहते हैं वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, वी आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु जस्ट कम हियर, वर्क देयर सर्टेन जॉब एंड देन गो। वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स who wanted to grow this company, or as a vision from our CEO, we make partners. So चाहे वो कॉन्टैक्ट सेंटर का एम्प्लॉय है या किसी शहर का मैनेजर है, ठीक है, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं। फिर दूसरी साइड पे राइडर्स के लिए we have the rider loyalty program which keep them intact with the company. अगर आप वो तीन साल के लिए काम कर रहा है, so he can earn a good amount of money, 3 साल के बाद वो उसको विड्रॉ कर सकता है। So basically, you are offering equity to the company, to the employees in form of stock options, and secondly, you are giving them a loyalty program and some other incentives. Yeah, that is for the riders, the rider loyalty program, and then for employees that's equity जो intact रखता है। देखें, कल अगर we're a small company at the moment, कल हम एक बड़ी कंपनी बनते हैं, ठीक है, once we are $1 billion company, तो सिर्फ जो उसकी सक्सेस जो है वो अपर मैनेजमेंट या द बोर्ड या इन्वेस्टर्स एंजॉय नहीं करें। वो जिन लोगों ने मेहनत की है कंपनी को ग्राउंड से पिक करने के लिए, सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड कि सारे के सारे लोग जो हैं उस सक्सेस को एंजॉय करें इन नेक्स्ट 3 years 5 years। जब हम किसी टाइम पे जाके IPO करते हैं, तो
people should feel pride कि यार इस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट रहा था, मुझे सिर्फ तनख्वाह नहीं मिली, आज मेरे पास जो है 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए है, मैं एक छोटी सी गाड़ी ले सकता हूँ या मैं घर ले सकता हूँ. Okay, that's amazing. So और क्या challenges हैं आपके? Because I'm on academic boards of couple of institutes, so there is always a debate going on when you sit with them. कि industry में requirements different हैं, academia is not prepared. When you talk about different forums about people like you, they have always complaints कि the human resource which is being produced from the academia is not up to the mark. We have to make efforts to, like bring them up to speed. So ये talk of the town है in academia circles as well, and SMEs के अंदर भी, large corporates के अंदर भी ये बात घूमती रहती है. So उसी के ना context में, so what do you want to say to the academia world के about the quality of the resource, or how to bridge the gap, or everything is good? एक जनरल चैलेंज जो मैं अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग द विद इन द क्लोज सर्कल्स, हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोगों को एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रही, वो इनोवेशन नहीं सिखा रही. वो कह रही हैं कि यार तुम जब ग्रेजुएट हो जाओगे यू विल गो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी और वहाँ पे तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें एक क्या कहते हैं अच्छा सा ऑफिस मिल जाएगा. ग्राउंड पे एक तो यूनिवर्सिटीज एंटरप्रेन्योर नहीं बना रही, दूसरा ये है कि एक क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रही ग्रेजुएट्स को कि आपने अगर काम करना है यू हैव टू बी बियॉन्ड व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडिया. सिर्फ ये नहीं है कि जो आपके मैनेजर ने बोल दिया है वही आपने करना है, यू हैव टू कम अप विद आइडियाज. You're absolutely right, मोहसिन. असल में जो critical thinking का जो point आपने raise किया है, so the other day I had discussion with some folks in one of the groups. So उसमें मैं यही कह रहा था कि it's about finding a white hair in a glass of milk, right? This is what critical thinking is all about. So you are absolutely right कि हमारे पास लकीर के फकीर वाला जो trend है, we need to get away from it, and we want people to think intelligently and come up with solutions to add value to themselves and to the company as well. So moving on, solution driven जो है ना वो innovation जो है, I was looking at their website and doing some research because we have to talk tonight. So I was saying, मुझे सामने आया कि you did something related to some COVID app kind of thing जिसमें notifications हैं, and can you let us know about this new initiative you have taken? Okay, so that's the app is called CoCare. It is developed by the tech team of Cheetah in partnership with Cornet Labs and PITB, which is Punjab Information Technology Board. ये CoCare app क्या कर रही है? Basically it's a contact tracing app जो इंडिया में भी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, सिंगापुर में भी पब्लिश की थी, और पाकिस्तान में इट वाज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय चीते एंड PITB. सो आपके मोबाइल में ये ऐप अवेलेबल है, ठीक है. आप मुझसे मिले हैं, मेरे मोबाइल में भी ऐप जो है अवेलेबल है, और आप 4 और लोगों से मिले हैं. सो जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ. 4 लोगों से आप मिले हैं और उन 4 में से एक जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है. So what that person will do is either he can upload his results, और हमें we are partnered with Chughtai Labs and government as well, जहाँ से हमें थोड़ा बहुत डेटा आ रहा है. So ये 5 लोग आपस में इंटरेक्ट हुए हैं, और उनमें से एक जो है वो कोरोना पॉजिटिव है. नाउ that app will generate an alert for you and for me कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, बिकॉज पिछले 14 दिन में आप किसी ऐसे बंदे से मिले हैं who is a positive, and now for by this you can open the economy. Number 2 ये है कि there is a QR scanning facility on the app जो आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं. अभी हम लोग we are talking to the restaurants as well. अभी काफी सारी बात हो रही है रेस्टोरेंट्स को ओपन करने की. शॉप्स पे लगा लें QR कोड, so if you've been to that shop you know कि यहाँ पे आज के लोग कोई जो शॉप विजिटर्स में थे और उसी टाइम में थे, तो
maybe the shopkeeper himself get COVID positive, you get a notification. And you Yeah. go to a restaurant, you visited an office place, and then you find out कि इस office में आज कोई COVID positive आ गया है, so you should practice quarantine. It's a very amazing idea. ये आपने Basically, app कब launch की थी? सर ये ऐप हमने लॉन्च किया है कोई इट्स बीन अबाउट आई थिंक 20-25 days. But there was not much word about this amazing solution or app since last 25 days. I heard it just now from you. So at the moment we're मैं doing शाम को जब आपकी वेबसाइट देख रहा था तो उस पे मुझे वीडियोस में आई सॉ वन वीडियो ऑन इट. तो व्हाट डू यू थिंक इसका रीजन क्या है कि इस पे ट्रैक्शन नहीं हो रही, या इसको लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, या प्राइवेसी के चैलेंजेस से थोड़े से लोग घबराए हुए हैं? आगे ईद भी आ रही है, सो वी नीड टू. so as far as privacy challenge is concerned, so Google और App Store की जो rules हैं about COVID apps are very strict. हमने वो pass किया है. So PITB के technical engineers ने इसको review किया है. So data transfer नहीं हो रहा, even data हमारे पास भी नहीं है उसका, ठीक है? It's encrypted. There is a peer-to-peer encryption as well within the app. I think क्या कहते हैं we are in talks with couple of large institutions as well to get this implemented in their offices, and with this forum I would like to request the people जो सुन रहे हैं कि they can get in touch with our teams. उसके बाद सिर्फ इस ऐप में इस ऐप से what you can do is there are a couple of services as well जो आप डायरेक्टली ऐप से ले सकते हैं. जैसे आपने चुपताई से टेस्ट करवाना है, या आपने ओला डॉक से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेनी है, so there's inbuilt services as well. You basically integrated all the offerings you have, or some of the offerings you have, into the app. So once the patient gets into the quarantine, you are making his life, you are basically facilitating him in a way कि उसका जो 14 days का quarantine period है वो थोड़ा सा आसानी से गुजर जाए. उसमें अभी तक गेम वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई गेम भी ऐड कर दें ताकि लोग खेलते रहें क्वारंटाइन में. Yeah, that would be great. The quarantine experience, I had some friends of mine who were infected with COVID. Now, alhamdulillah, they have recovered. तो वो मुझसे पूछ रहे थे हम क्या करें, we are getting bored. मैंने कहा देखो, I've been to Etikaf 2 times and it's 3-4 days are little bit tough, but unless until you keep your spirit positive और अपने आप को एक रूटीन में आप engage करें, तो तब तक जो है उसके अलावा कोई और हल नहीं है इसका. Innovation is very important for any business. Now that we have to open the economy, I think the contract tracing app and testing is the only solution. अभी काफी सारे लोग I would rather say it's the only way to go. क्योंकि जब तक आप अगर जो fear की environment है आप उसको break नहीं करेंगे, you cannot revive economy, you cannot make people come to the offices. आप life को और routine को normal pace पे restore नहीं कर सकते unless until you don't kill a threat to जो fear की threat है इसको overcome नहीं करेंगे. And I think your app is one of the very good solutions to overcome this threat on a national level, not only for Pakistan but for all the countries globally. लेकिन हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे तो रह के I think we should talk more about it. जितने भी मेरे circles हैं तो I will inform them कि भाई start using this app. This is for your health and protection and for protection of everyone. And there is no monetary benefit for Cheetah at all. This is purely a CSR initiative. अगर there are some IT experts, they want to help to enhance this further, we are more than welcome to invite them, let them know कि ये हमारे पास है, क्या कहते हैं ये हमने बनाया है. Someone wants to do some more security checks on this, किसी के और recommendations हैं, ठीक है. we're welcoming everyone कि आए इसको जो है वो mass level पे लेके जाते हैं. This is the only way. आप क्या कहते हैं एहतियात कर लें, आप टेस्ट कर लें और आप जो है
क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें. दिस इज द ओनली वे टू अच्छा, I was गेट. looking at कि जो नई iOS की update आई है about a week ago, right? They have some similar kind of feature for COVID tracking. You have to enable it by default or something. So location services से based. I didn't had a chance to look at into deep detail, but अगर आपने इसको देखा है तो how that feature of iOS differs with the one which you are offering. अच्छा, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बट दैट वुड बी ओनली बेस्ड ऑन पीयर टू पीयर. बट अगर आपने क्यूआर स्कैनिंग करनी है तो वो नहीं होगी. ठीक है, वो कस्टमाइज नहीं है फॉर पाकिस्तान. आई वुड से दिस CoCare कैन बी कस्टमाइज फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल. सीमेंट इंडस्ट्री के लिए उसमें अगर कोई स्पेशल चीज़ें SOPs हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट. द होल आइडिया इज के वी शुड ओपन द इकोनॉमी. लोग जो हैं वो घरों में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं, बिजनेसेस तबाह हो रहे हैं. ठीक है, वी शुड ओपन द इकोनॉमी. और इफ देयर आर एनी एडिशंस टू द ऐप और किसी के पास सजेशन है, ठीक है, वी आर मोर देन वेलकम टू अडॉप्ट दैट. So Mohsin, food delivery and groceries. So what's next is coming? Food is there, groceries there, medicine is there, and we're coming up with dairy, which is क्या कहते हैं, डेली नेसेसिटी है. आपके घर की आपको दूध चाहिए, आपको दही चाहिए. So the team is working on dairy, and very soon we'll be coming up with the dairy vertical. Digital Gawala's business. You are jumping into digital Gawala's business. हाँ जी, बिल्कुल हम गवाला बनना चाह रहे हैं जी. बिकॉज दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इस टाइम जो कन्वेंशनल दूध है, आपको पता ही नहीं है कि उसमें जो रॉ मिल्क हमारा 92% है जो पाकिस्तान में यूज़ होता है, और उस 92% दूध को आप डेली पी रहे हैं. आपको पता ही नहीं है कि उस दूध में फैट कितने हैं, उसमें एंटीबायोटिक कितने हैं, उसमें pH लेवल क्या है. तो this is something will be coming up very soon, or that's also based on people's health. अभी मैं जब when we were doing research about dairy, I found out कि यार मेरे जो घर में दूध आ रहा है ना गवाले से, वो पता नहीं कैसा है. I should get it tested. तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं. So we want to educate people कि वो जो दूध पी रहे हैं वो अच्छा पिएं. ठीक है, we'll be more than welcome. अगर कोई अच्छी डेयरी कोलैबोरेट करना चाहती है हमारे साथ, हम लोग अच्छी डेयरीज को ऑन बोर्ड भी लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो अच्छा दूध सप्लाई करें घर में. Do you think that telecom companies can help you in the in-transit insurance sector? Yes, any company can. If तो telecom companies में कई companies ऐसी हैं, almost everyone have now microfinance banks, ठीक है, और they are offering some insurance. Mobilink ने भी शुरू किया था, बीच में वायद ने भी किया था. I'm not aware of Zong and Telenor, but Telenor का भी I think insurance package की service आई थी. Do you think it would be a good idea if they take the initiative of providing insurance service to riders and in-transit delivery packages as a part of bundled service to logistic companies like one of yours? हम लोग दो टेलीकॉम कंपनीज के साथ तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. ठीक है, इफ और एक थर्ड पार्टी के साथ हम लोग इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं. इफ देयर इज अ चीपर सोल्यूशन फ्रॉम cheaper and viable solution which can help both our company, riders and the customers, we're more than welcome to adapt that. और मैंने जैसे पहले भी कहा कि we are a tailor made business for Pakistan, और ऐसी हर चीज़ वो हम अडाप्ट करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी होगी. Okay, so 3 biggest challenges which you think कि अगर वो आपके solve हो जाएं तो पूरा ecosystem में like there is a phenomenal growth, because Prime Minister का पूरा focus digital Pakistan के ऊपर है. I'm not claiming Naya Pakistan, especially digital Pakistan, ठीक है, and in my circles in the government they also talk about कि there is lot of focus on gearing up this young talent and digital services, ताकि पाकिस्तान में जितनी ग्रोथ आएगी वो अब डिजिटल के रेवोल्यूशन से ही आएगी. So 1 or 2 challenges which you think के नेशनल लेवल पे अगर सॉल्व हो जाएं तो that will
become that will help in exponential growth? अब देख लें, अब अपने नेबरिंग कंट्री को देख लें, पिछले एक साल में गालिबन उन्होंने $5 बिलियन रेज किया है फॉर देयर स्टार्टअप्स। पाकिस्तान में शायद पिछले 10 साल में 500 मिलियन भी नहीं हुआ है, जिसमें 2 बड़ी ट्रांजेक्शन्स थी, एक दराज की और एक Telenor Microfinance Bank. इजी पैसा की, टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की। So I think there is still a room. Government should have the flexibility. Government should have a flexible tax rate for these startups, जो अभी नहीं है, unfortunately. Government should work closely and come up with. देखिए, हमें क्या कहते हैं, नई गाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। हम देख लें इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, why their tech ecosystem is so ahead of पाकिस्तान। हम वहाँ से अच्छी एग्जांपल्स लेके आएँ और यहाँ पे अडैप्ट करें। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ द टेक इकोसिस्टम वर्क्स। पैसे कैसे आएंगे बाहर से, वो 3-3 हफ्ते बैंक में पड़े नहीं रहे। तो उसके लिए कोई रेगुलेशन अभी रिसेंटली आई है, ठीक है, अभी मुझे उसके इम्पैक्ट्स का नहीं पता, बट आई थिंक वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। Okay, so message for young entrepreneurs. आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि यू गाइस नीड टू कम अप विद न्यू आइडियाज, लुक अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, एंड डेवलप समथिंग अमेजिंग फॉर पाकिस्तान। क्या कहते हैं, सिर्फ नॉट स्पेसिफिक टू फूड डिलीवरी, नॉट स्पेसिफिक टू राइड हेलिंग, but there are a lot of other initiatives which are taken in India, Bangladesh, Sri Lanka, US, Europe. तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम टैलेंट तो बहुत है, सिर्फ सही जगह पे यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। So this is my last question to you. So right now, अगर आप apps की marketplace को देखें, तो there are single category apps and there are multi category apps. So some trend is changing. So what do you think about them, and how you think this will help businesses who are already into the game? देखिए जी, मल्टी कैटेगरी एप्स में फ़ायदा ये है कि द कस्टमर can order different products from the same app. You don't have to get 1, 2 or 3 apps. Specialized apps, I think थोड़ा सा पुराना हो गया है। Cheetah has expanded to 4 verticals by now. इसको सुपर ऐप कह लें, इसको मल्टी कैटेगरी ऐप कह लें, और बस क्या कहते हैं, if someone is going to a multi category app, he needs to make sure there is a specialized team for all their 4 or 5 or 7 categories. अगर आप मिक्स कर देंगे टीम्स को, then वही हाल होगा कि आप क्या कहते हैं, आप जो है वो jack of all master of none वाली situation। Basically आप कह रहे हैं कि if you are offering multiple categories in your app, then you should have separate teams managing those categories individually. So one category, one team, so that as a service it's managed properly. Okay. अगर logistics and courier companies को आपस में collaborative environment create करना हो, so how can this happen? I think there are a lot of initiatives. मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि down the line, once there is a competition, space tight हो जाती है, consolidation starts to happen. And post COVID में काफी companies को, especially courier, logistics and delivery की, क्योंकि lockdown, quarantine, smart lockdown, complete lockdown, इसकी वजह से काफी चीजें थोड़ी सी disturb हुई हैं. So if there is a thought कि ये सब companies जो हैं आपस में collaborate करें, so how is that possible? What are your thoughts on it? This is very high level, just question. दो चीजें हैं, एक तो ये है कि देखें, I'll be honest, there are big companies and there are small companies. छोटी कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं, बड़ी कंपनी मुंह नहीं लगाती है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि ड्यूरिंग कोविड सारी कंपनीज को जो है वो इकट्ठे बैठ के एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, मैकेनिज्म बनाना चाहिए था टू प्रेजेंट इट टू गवर्नमेंट कि हमारे ये SOPs हैं, हम लोग इस तरह काम करेंगे, यू शुड अलाउ अस। चाइना में क्या हुआ, उन्होंने लॉकडाउन किए, मीतवान वाज अलाउड, ऑल देयर लॉजिस्टिक्स कंपनीज वर अलाउड बिकॉज दे सेटल्ड इट बिफोर हैंड।
यहाँ पे जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ तो हर कंपनी खुद से जाके अप्रूवल्स ले रही थी, और कुछ कंपनीज को बहुत जल्दी मिल गए, कुछ कंपनीज को लेट मिले जिनके ताल्लुकात नहीं थे। दूसरा एलिमेंट ये है कि एज फार एज कोलैबोरेशन इज कंसर्न, सो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें क्या कहते हैं, किसी ने बुलाया था, अदर कंपनीज एज वेल। वी केम अप विद एन आइडिया कि तीनों कंपनीज मिलके जिसकी जो स्पेशलिटी है वो उसके ऊपर मिड माइल कंपनी ए कर ले, लास्ट माइल कंपनी बी कर ले, ठीक है, अगर ड्रॉपशिप मॉडल है कंपनी सी कर ले। सो आई थिंक अगर इन जनरल जैसे आपने राशन तकसीम करना था, उसमें these companies could have collaborated a lot. I think in future there can be a lot of avenues जहाँ पे companies एक दूसरे से help ले लेंगे, और लेना भी चाहिए। देखिए, हर एक इनिशिएटिव यही है कि मैन पावर क्रिएट करे, जॉब्स क्रिएट करे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। एट द एंड ऑफ द डे, इफ कंपनीज इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर दे डोंट कोलैबोरेट इन हार्ड टाइम्स, सो एट द एंड जो आपका राइडर है या राइड हेलिंग बिजनेस में ड्राइवर है या राइडर है या मेंबर है, उसको आप जो भी कह लें, दे सफर। I think on top of एक आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल किसी बड़ी कंपनी का जो राइडर है वो सुबह 9 से लेके 4 बजे तक काम करता है। नाउ ही वांट्स टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ही कैन दैट कंपनी कैन कोलैबोरेट विद अस एंड से कि यार हमारे राइडर्स 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करना चाहते हैं, हमारे पास काम नहीं है, वी गिव देम अ सर्टेन सैलरी, कैन यू गिव देम एडिशनल शिफ्ट्स जहां पे वो काम करके कुछ 300 400 500 रुपया एडिशनल। वंडरफुल आइडिया मेरे जहन में एकदम इसको हुआ है कि एक सेंट्रल रेपोजिटरी होनी चाहिए जिसमें राइडर्स का डेटाबेस मौजूद हो सबका, ताकि सबको पता हो कि क्योंकि अभी भी राइडर्स मल्टीपल जॉब्स करते हैं। इवन करीम का जो राइडर है, ड्राइवर है, राइडर है, जो भी आप कह लें, कि एवरी कंपनी हैज देयर ओन टर्मिनोलॉजी। जो करीम का बंदा है वो उबर भी चला रहा है, वो बाकी भी काम कर रहा है। जो बाइकिया में राइडर है वो बाकी लोगों को भी सर्विस दे रहा है। डिपेंड करता है कि उसके पास अगर राइड नहीं आ रही, ही ओपन्स अप द अदर ऐप एंड ही फाइंड्स आउट। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जिस तरह टाइम सेंसिटिव डिलीवरीज हैं या ये जो आपने बोला है नाउ कॉमर्स का ज़माना आने वाला है, तो इसमें कोलैबोरेशन के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, सो एवरीवन नोज कि यार ये राइडर इस टाइम पे बिजी है या इस टाइम पे बिजी नहीं है, क्योंकि इससे रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो जाएंगी और जो है इट्स बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स एंड द बिजनेसेस एज वेल। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा वी आर मोर देन वेलकम टू कोलैबोरेट एट एनी लेवल, और whether it be big companies or smaller companies. Okay, so with this thing, I think we discussed a lot of good things about the logistics business. We come to know about the now commerce, the multi-category apps. फिर आपने बताया कि यंग टैलेंट को कैसे मैनेज करना है और एकेडेमिया को कहाँ पे फोकस करना है. We talked about various industrial issues in the logistics sector, and the upcoming thing which was very good कि आपने जो COVID-19 related app launch की है as a CSR activity. It's very good for businesses to open up and for a country to restore to normal operations. So I thank you very much for joining us today at the Business Pro Show, or we'll stay in touch. ठीक है जवाद, thank you very much for having me here. और ठीक है, I would lastly request to download the CoCare app, spread the word to open the economy, or that would be beneficial for Pakistan. Inshallah. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.